Hello everyone, hope you all are safe at home. This is Bina Parha, your mathematics teacher. Today I am back with a new exercise of your unit fraction and decimal. So in this video we will study multiplication of decimals and division of decimals. And after that we will do exercise 2.4 and exercise 2.5. Students, you can also download the exercise with solution and answer sheet with the description box. In previous video we have studied the subtractions of decimals. So now come to the point. Multiplications of decimals by 10, 100 and 1000. First we will multiply a decimal number by 10. यहाँ हमें एक डेसिमल नंबर 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 10 से. Just remember one thing, when a decimal is multiplied by 10, the decimal point is shifted to the right by 1 place. मतलब अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो जब हम किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन 10, 100, 1000 जिस किसी से भी करते हैं तो डेसिमल अपने प्लेस से राइट साइड में जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही प्लेस आगे मूव कर जाता है. फॉर दिस एग्जाम्पल यहाँ पर 10 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो केवल 1 है तो डेसिमल अपने प्लेस से एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 3.14 से 31.4 हो जाएगा. नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 87.6 इज़ मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं. इट मीन्स डेसिमल को हमें आगे राइट साइड में 2 प्लेस तक लेके जाना है. एंड 87.6 में डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है तो डेसिमल के बाद हम कितने भी ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं, तो हम इसको 87.600 भी लिख सकते हैं. अब हम डेसिमल को नेक्स्ट 2 प्लेस तक लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8760. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 0.005 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1000. तो यहाँ पर 1000 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हैं तो हमें डेसिमल को नेक्स्ट 3 प्लेस तक मूव करना है. तो यहाँ से 0.005 में डेसिमल अपने प्लेस से 1, 2, 3 मीन्स 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.0. नाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. Here we have 2.34 is multiplied by 1.2. यहाँ पर हमें 2.34 का मल्टीप्लाई 1.2 से करना है. So first of all we will write this value by ignoring decimal point. So after multiplication we will get 2808. Now we will back to the real values. Here we have 2 decimal places in 2.34 and 1 decimal place in 1.2. So total we have 3 decimal place. So we will put decimal in before last 3 digit in the answer. So finally we have 2.808 as answer. Now come to exercise 2.4. First question is find the products of the following. Part A is 25.36 is multiplied by 10. So as you know, when a decimal is multiplied by 10, the decimal point is shifted to the right by 1 place. Here the decimal is being shifted after 3. So the value will be 253.6. In the next part we have 13.3 is multiplied by 100. So here we have 2 zeros in 100. So the decimal is shifted to the right by 2 place and you know we can write 13.3 as 13.300 and after multiplication we will move the decimal after 2 place, so it will be 1330.0. Now in the next question we have 0.0056 is multiplied by 1000 and you know we have 3 zeros in 1000, so decimal will be shifted to the 3 place to the right side. So after multiplication decimal is being shifted between 5 and 6, so it will be 5.6. Next question number 2 is multiply 23.05 by 12. So first of all we will write the digit by ignoring decimal points, so it will be 2305 is multiplied by 12 and after multiplication we will get 27,660. और आपको पता है क्वेश्चन में हमें 23.05 मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस हमें दिए होते, तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट के बाद हमें जो आंसर मिला है उसमें हम बिफोर लास्ट 2 डिजिट हम डेसिमल पॉइंट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 276.60. In next question we have 0.0
2.57 इज़ मल्टीप्लाई बाय 2.58। तो सबसे पहले हम इनके डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करके वैल्यूज़ को सिंपली लिख लेंगे। 57 इज़ मल्टीप्लाई बाय 258 एंड देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 14,706। नाउ हमने डिजिट्स को वैसे ही लिख लिया है जैसे हमें क्वेश्चंस में दे रखे थे, 0.57 इंटू 2.58। आप देखेंगे 0.57 में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मीन्स डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। और ऐसे ही 2.58 में भी हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, मीन्स ओवरऑल हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो जो अब हमारा आंसर आया 14,706, इसमें भी हम यूनिट प्लेस से काउंट करेंगे और पीछे से बिफोर 4 डिजिट पहले हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2.5, 3.7 एंड 1.8। सो इनको भी हम सिंपली सबसे पहले इनके डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए डिजिट्स को सिंपली लिख लेंगे, लाइक 25 इज़ मल्टीप्लाई बाय 37 इज़ मल्टीप्लाई बाय 18। सो सबसे पहले हम 25 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे। After the multiplication we will get 925. Now we will multiply 925 to 18 and after the multiplication finally we will get 16,650. So 16,650 is the multiplication of 25, 37 and 18. So अब हम डिजिट्स को पहले के जैसे ही लिख लेंगे जैसे हमें क्वेश्चंस में दे रखे थे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.7 मल्टीप्लाई बाय 1.8। सो आप देखेंगे तो 2.5 में हमारे पास डेसिमल प्लेस केवल एक है, 3.7 में भी एक है एंड 1.8 में भी हमारे पास एक डेसिमल प्लेस है। सो ओवरऑल हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो जो हमारे पास आंसर आया है 16,650, उसमें भी हम पीछे से काउंट करेंगे और 3 डेसिमल प्लेस पर हम डेसिमल को पॉइंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फैन रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 123.5 rotations per minute. If the speed of the regulator is adjusted to increase the speed of the fan 3.5 times, find numbers of rotations per minute of the fan. यह क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फ़ैन की स्पीड कि एक फ़ैन 1 मिनट में 123.5 रोटेशंस में चक्कर लगाता है। अगर उसी फ़ैन की स्पीड 3.5 गुना बढ़ा दी जाए तो ये पूछा है आपसे कि वो फ़ैन 1 मिनट में आप कितने रोटेशंस कंप्लीट। सो द स्पीड ऑफ फैन रोटेशन इज इक्वल टू 123.5 पर मिनट एंड you know it is increasing by 3.5 times. So simply we will multiply both values. 123.5 is multiplied by 305. So जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं उसी से करेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे, वैल्यूज़ का सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स 1235 इज मल्टीप्लाई बाय 35 आफ्टर इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट्स। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 43,225। नाउ अब जैसे से डेसिमल प्लेसेस हमारे पास हैं दोनों को हम ऐड करके यहाँ डेसिमल प्लेस कर देंगे। लाइक हमें पहली वैल्यू में भी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है और सेकंड 3.5 में भी हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है। मीन्स हमारे पास ओवरऑल हमारे पास हो गए 2 डेसिमल प्लेस। सो इन द आंसर वी विल प्लेस डेसिमल बिफोर लास्ट 2 डिजिट एंड simply the answer will be 432.25 per minute. Means it is the rotation of the fan after increasing 3.5 times of its speed. Now the next question number 6 is a motor bike goes 67.33 km on 1 liter of petrol. What distance would bike go on 3.25 liter of petrol? Means एक बाइक है जो 1 लीटर पेट्रोल में 67.33 किलोमीटर रन कर रही है एंड वही बाइक 3.25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। So the distance covered in 1 liter of petrol is equal to 67.33 kilometer and same the distance covered in 3.25 liter of petrol will be 3.25 is multiplied by 67.33. Now we will multiply both these value after ignoring the decimal point. So simply we will multiply 325 and 6,733. So after multiplication we will get 21,88,225. So we have total 4 decimal places in the given digits, 2 in 3.25 and 2 decimal places in 67.33. Therefore we have to put 4 decimal places in the answer. So
we will get 218.8225 kilometer as answer. Now we will learn the next concept, division of decimals. And similarly we will study the division of decimals by 10, 100 and 1000. कि मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल अपने प्लेस से राइट साइड में मूव करता है एंड इन डिवीज़न डेसिमल अपने प्लेस से लेफ्ट साइड में मूव करता है. ओके, सो नाउ कम टू द डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स. फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 12.8 इज डिवाइडेड बाय 10. सो here we have only one number of 0 and 10, so decimal will move to the left only one place, so it will be 1.28. so I hope आप समझ गए होंगे कि जिस प्लेस पर डेसिमल होता है डिवीज़न में वो अपने प्लेस से उतने ही प्लेस बैक मीन्स लेफ्ट में मूव होता है जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिवीज़न में दिए हुए होते हैं. ओके, सो यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है 87.6 इज़ डिवाइडेड बाय 100. देखिए यहाँ पर 100 में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ केवल 2 हैं. इट मीन्स डेसिमल अपने प्लेस से यानी कि 7 और 6 के बीच में से लेफ़्ट में 2 प्लेस मूव करेगा. मीन्स 7 और 8 को क्रॉस करते हुए ये 8 से पहले पहुँच जाएगा. मीन्स ये हो जाएगा 0.876. ओके, here we have another example. 5.0 is divided by 1000 and you can see we have 3 number of zeros in 1000. It means decimal will move to the left by 3 places. Okay, so the value 5.0 will be 0.005. Now we will learn division of decimal numbers by another decimal numbers. So here we have example 6.4 is divided by 1.6. So first of all we will write this value by removing decimal point, like 64 upon 10 is divided by 16 upon 10. And now we will change the division sign with the multiplication sign by inversing the digit 16 upon 10, and it will be 64 upon 10 is multiplied by 10 upon 16. After simplifying we will get 4 as answer. Now come to the exercise 2.5. The first question is divide the following. Part A is 0.04 is divided by 100. So here you can see there is 2 zeros. So we shift the decimal point by 2 place to the left. We know that 0.04 can be written as 0.04. means decimal से पहले या डेसिमल के बाद हम कितने भी ज़ीरो लगाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो अब हम डेसिमल प्लेस को अपने प्लेस से 2 प्लेस बैक यानी कि लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 0.0004. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट ए इज़ 7.7 इज़ डिवाइडेड बाय 11. सो सिंपली सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करके 7.7 को लिख लेंगे 77 अपॉन 10 इज़ डिवाइडेड बाय 11. नाउ डिवीज़न साइन को हम मल्टीप्लाई में रिप्लेस करके 11 को इन्वर्स कर देंगे. मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 11. सो अब 11 से हम 77 को 7 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे एंड दिस वैल्यू विल बी 7 अपॉन 10. And now in 10 there is only 1 0, so decimal will be shifted to the 1 place to the left to 7, so it will be 0.7. Now the next question number H is 1.8 is divided by 0.6. so सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे और इनको लिख देंगे. 1.8 को हम लिख देंगे 18 अपॉन 10 इज़ डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 10. सो अब हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 6 अपॉन 10 को इन्वर्स करके 10 अपॉन 6 लिख देंगे. नाउ 18 इज 3 टाइम डिविजिबल बाय 6, सो इट विल बी 3 बिकॉज 10 इज कैंसल्ड आउट बाय द 10. सो फाइनली द आंसर इज 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12.321 इज डिवाइडेड बाय 11.1. सो सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे और इसको लिख देंगे 12,321 अपॉन 1000 बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो नीचे 1000 हो जाएगा. एंड 11.1 विल बी 111 अपॉन 10. अब हम डिवीज़न साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में
एंड 111 अपॉन 10 को इन्वर्स करके लिख देंगे 10 अपॉन 111। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 111 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 111 टाइम्स एंड 1000 कैंसिल हो जाएगा 10 से 100 टाइम्स, सो इट विल बी 111 अपॉन 1। अब यहाँ अपॉन में 100 है और 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो हम पीछे से 2 प्लेस काउंट करके डेसिमल लगा देंगे और आंसर हो जाएगा 1.11। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने 1.11 को 11.1 कर दिया है, प्लीज़ आप इसे करेक्ट करके लिख लीजिएगा। 1.11 इज़ फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 19.2 बाय 6। अब हम सिंपली जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 192/10 इज डिवाइडेड बाय 6। और अब डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 6 को इन्वर्स करके लिख देंगे 1/6। आप देखेंगे 192 6 से 32 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है एंड सो हो जाएगा ये 32/10। बिकॉज 10 में 1 ज़ीरो है तो पीछे से 1 प्लेस काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे एंड फाइनली वी विल गेट 3.2 एज आंसर। Now come to part H, that is 448.7 is divided by 7000। यहाँ हम वही करेंगे, डेसिमल को रिमूव करके ये हो जाएगा 4487/10 इज़ डिवाइडेड बाय 7000। नाउ अब हम डिवीज़न के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और 7000 को इन्वर्स करके लिख देंगे 1/7000 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 641/10,000। और 10,000 में आप देखेंगे 1 2 3 4 ज़ीरो हैं तो हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे 4 और पीछे से काउंट करते हुए हम डेसिमल लगा देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 0.0641 एज आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 3.24 बाय 0.6। इसमें भी आप देख सकते हैं करने के लिए कुछ नया नहीं है, सिंपली हमें वही करना है। डेसिमल को रिमूव करते हुए नीचे डेसिमल के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स हैं हम नीचे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर देंगे। मीन्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो हम नीचे 100 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 324/100 एंड डिवीज़न के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा हमारा 10/6। ओके, अब हम 6 से 324 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 54 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 54/10। अब देखेंगे 10 में केवल 1 ज़ीरो है तो हम 54 में पीछे से 1 प्लेस काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 5.4। Now come to the next question number 4 is a pack of 31 eggs cost rupees 173.60. Find the cost of per egg। यहाँ पर आपको एक पैकेट में 31 एग्स हैं जिसकी कॉस्ट है 173.60 रुपीज़। आपको बताना है कि एक एग की कॉस्ट कितनी है। सो हमने लिखा है द कॉस्ट ऑफ 31 एग्स इज़ इक्वल टू रुपीज़ 173.60 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एग इज़ इक्वल टू 173.60 इज डिवाइडेड बाय 13। नाउ हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके 31 का इन्वर्स कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 1/31 एंड 31 से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 56/10 एंड फाइनली वी गेट 5.6। Now the next question number 7 is 19 benches were purchased by a school for rupees 3,966.25 rupees. Find the cost of one bench। यहाँ पर एक स्कूल ने 19 बेंचेस खरीदी हैं जिनकी कॉस्ट है 3,966.25 रुपीज़ और आपको बतानी है कि एक बेंच की कॉस्ट क्या है। सो मैंने यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ 19 बेंच इज़ इक्वल टू rupees 3,966.25 rupees and the cost of one bench is equal to 3,966.25 divided by 19 because जो पूरी कॉस्ट है 19 बेंचेस की उसमें अगर आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 बेंच की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिवीज़न के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया है और 19 का इन्वर्स कर दिया है और 19 से हमने इस पूरी वैल्यू को कैंसिल आउट किया है। हाँ, उसको करने से पहले हमने क्या किया है,
कि 3966.25 से डेसिमल को रिमूव करके हमने, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं तो हमने नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, मीन्स नीचे हमने 100 कर दिया है। अब हमने इसको कैंसिल आउट करके जो फाइनली हमें मिला है वो है 20,875/100। नाउ नीचे 100 है तो 100 में 2 ज़ीरो हैं एंड हम 2 ज़ीरो पीछे से काउंट, 2 प्लेस पीछे से काउंट करके हम डेसिमल प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 208.75 रुपीज़, जो कि कॉस्ट होगी 1 बेंच की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ बी सेफ एट होम।